जज्ब किया उसको, तो वो फिल्मों को अंतर्राष्ट्रीय पटल तक ले जाने में अनुराग का बहुत बड़ी भूमिका है। तो आज वो जो कर रहे हैं ना, वो उन्होंने वो जो खेत बोया था उस समय, लोगों को तब कुछ उग नहीं रहा था, लेकिन अब वो 10-15 साल बाद जो वो उगा है, वो अनुराग के कई प्रयासों का ही नतीजा है। तो हम उसे नज़रअंदाज नहीं कर सकते कि अनुराग की फिल्में कमर्शियल सक्सेसफुल नहीं है, इसके लिए अनुराग को गिनती की इसमें श्रेणी में नहीं आएगा। अनुराग अपनी श्रेणी खुद बनाते हैं। क्या बात, वो उसमें अपने आप में अव्वल है वो। तो मुझे, और ऐसे लोग ही आते रहेंगे तभी सिनेमा का और व्यापक स्तर पर ये बढ़ेगा। I will just. You want to answer to Anurag Kashyap? Eminent French actress Miss Borgo. I want to know what are the special features of Cannes Film Samaroh, Cannes Film Festival. Yes. In comparison to our film festival. Well, that's a good question. But first of all, all festivals in the world have a market film. And the reason I love Khajuraho Film Festival, because here it's not a question about selling or buying films. It's a question about preparing the new generation to go in the right path. And what is so exceptional about here, well, it is, it is Temple, Tigers, and Tapratokis. First, Raja Bundela started this festival to bring the cinema to the very poor people of Khajuraho who never had a cinema. And he did the Tapratokis. And after, he brought all these young people from all over India to really learn the new skills of the international cinema. And it's the reason that all the guests, all the week, are very, very special. They are not just a famous actor or famous director, famous producer. They are all someone in the profession who has brought something essential. And here, I will say it is a philosophical festival and mystical. So it's extraordinary. If you go to Cannes, in fact, I have to tell a small little story. My father was a film producer, Pierre Chichériau, but my uncle, Roger Veil-Lorac, before the war, started the Cannes Film Festival with Jean Jay and Fabre Lebret. It happened in a very strange way. The three of them were Jewish. I'm a Catholic, but they were Jewish. And they just attended the festival in Venice, La Nostra de Venice. And in the train, they were all discussing about, the Hitler and Mussolini movement, and they were quite afraid of that. And they said, we have to start a festival in France which will be not political, with no influence of the politics. And it's how Cannes started. And it's the reason Cannes was so exceptional for many, many years. Of course, now, like everywhere else in the world, there is always political influences. You can't stop it. But for many years, you will see they've been showing really the story of the world. And they've been fighting against, for the Russian directors, the directors from Afghanistan and Iran who can't show and tell the truth. They bring them to Cannes and they fight to really show the truth of the planet. So that's very important. And also, here too, there is no pressure on political things. If the people have to say something which is interesting and good for humanity, they'll be here. So congratulations. एक मिनट बस, लास्ट क्वेश्चन। सूरज जी, आप सर से कर लें या मेरी की बात है? जैसे कि अपने भारत में प्रतिष्ठित फेस्टिवल जैसे मामी होता है ना, टाटा लिटरेचर फेस्टिवल होता है, जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल्स होता है, जागरण फिल्म फेस्टिवल होता है, इस तरह के फेस्टिवल और फिक्की, ये सारे फेस्टिवल, और हम सबको अटेंड भी करते हैं और हम सवाल जवाब वाले प्रश्न में सवाल भी करते हैं जो बहुत ही सराहा जाता है हमारे सवाल को। तो एक सर, आप किन से करेंगे? इनसे मैं किन से करूं? आप बताइए। दो तरह के जो फेस्टिवल्स हैं, एक फिल्म फेस्टिवल है और एक लिटरेचर फेस्टिवल्स है। तो मैं सर से करता हूं, आप इनसे कर लीजिए। तो अमित जी, लिटरेचर जो फेस्टिवल्स होता है उसमें लिटरेचर की बात होती है। अभी जयपुर 1 से 5 फरवरी होने वाला है, हम भी जा रहे हैं उसमें, लिटरेचर फेस्टिवल में।
100 से अधिक देश उसमें शामिल होते हैं। तो लिटरेचर फेस्टिवल्स हमारे साहित्य को या लेखन को या साहित्य को कितना बढ़ाता है? देखिए, मैं कभी इसका हिस्सा रहा नहीं हूँ। मैंने भी 1-2 ही लिटरेचर फेस्टिवल अटेंड किए हैं। कभी लास्ट जो हुआ था टाटा लिटरेचर फेस्टिवल मैंने देहरादून वाला सेलेक्ट अभी ये किया था, और अभी जो किरोड़ीमल कॉलेज में हुआ था जो भारत लिटरेचर फेस्टिवल। देखिए, मेरा ये पहला बहुत ही वेरी नेसेंट स्टेज टू एनीबडी टू कमेंट ऑन दिस लिटरेचर फेस्टिवल। लेकिन मुझे फेस्टिवल जाके ये समझ में तो आया है कि किताबों का जो चलन है, हमारे सामने किताबें ही थी, अब तो मोबाइल और सब ये आ गया कि आप किंडर पे पढ़ सकते हैं, सब जगह पढ़ सकते हैं। लेकिन किताबें आपको समृद्ध करती हैं। अगर मराठी में एक मण है कि वाचाल तर वाचाल, कि आप पढ़ेंगे तो बचेंगे। तो वो मुझे लग रहा है कि इस तरह के आयोजन, जयपुर तो लिटरेचर फेस्टिवल तो मेरे लगता है अनूठा और एक में ऐसा फेस्टिवल जो बहुत फेमस है वर्ल्ड वाइड। तो इस तरह जैसे फिल्मों के आयोजन की बात की मैंने फेस्टिवल की, वैसे मुझे लगता है लिटरेचर फेस्टिवल भी वो मुकाम हासिल कर चुका है इंडिया में कि हम लोग जिस तरह से राजकमल प्रकाशन हो या वाणी प्रकाशन हो या पेंगुइन है, जितने लोग जब जहाँ अपना स्टॉल लगाते हैं, तो ये देखकर, इतने बड़े स्टॉल को देख कर ये तो समझ में आ रहा है कि ये फल फूल रहा है। तो मुझे लग रहा है कि हमें इसको शुभकामनाएं ही देनी चाहिए कि दिन दूनी रात चौगनी तरक्की करे, फले फूले। अंतिम क्वेश्चन। हाँ, अंतिम प्रश्न, और हरीश भिमानी जी से इसका समापन कराना चाहिए। लिटरेचर का जो फेस्टिवल है, साहित्योत्सव, लिट फेस्ट भी संक्षेप में बोलते हैं इसको, क्योंकि और उसका जिस तरह से कार्यक्रम होता है और जिस तरह से सारा, तो आप ने देखा होगा कि उसमें एक ख़ास तरह की रिपीटिशन है, दोहराव है। तो उसकी नई दिशाएं क्या हो सकती हैं लिटरेरी फेस्टिवल को, उसको भी आम लोगों से और साहित्य की संस्कृति को विकसित करने के लिए क्या हो सकता है? संक्षेप में कहूँ तो ये छोटा सा खजुराहो फिल्म फेस्टिवल अन्य फेस्टिवल्स को एक राह दिखा रहा है, एक मार्ग प्रशस्त कर रहा है। आमतौर पर फेस्टिवल्स में क्या होता है कि वो सॉफ्ट मार्केटिंग होती है, कि मैंने पहले ही कहा कि जो फिल्में रिलीज़ नहीं हो पाती, और शायद इसलिए कि वो अन्य फिल्मों से मानसिक रूप से, बौद्धिक रूप से, इंटेलेक्चुअली बेहतर हैं, तो उनकी एक सॉफ्ट मार्केटिंग होती है। जबकि ये फेस्टिवल कहता है कि वो तो दूर की बात है, वो आपका निर्णय है मार्केटिंग। हम तो आप तक आ रहे हैं क्योंकि हम सिनेमा का मानस और व्यापक बनाना चाहते हैं, और इसलिए खजुराहो फिल्म महोत्सव ये केवल बुंदेलखंड के लिए या खजुराहो के लिए एक उपलब्धि नहीं है, लेकिन उन सारे लोगों के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है जो चाहते हुए भी इसके नज़दीक नहीं आ सकते, तो फेस्टिवल इनके नज़दीक जा रहा है। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं कि भविष्य में ऐसा काम होता रहे, हम दूर से दूर तक पहुँचें, जहां फिल्मों को अब तो केवल मोबाइल के छोटे पर्दों पर देखा जाता है, उन्हें एक कम्युनिटी एक्सपीरियंस, एक सामूहिक अनुभव बना सकें और अपने आप को पूछ सकें कि क्या मैं भी एक फिल्मकार बन सकता हूं, क्या मैं भी एक लेखक बन सकता हूं। ये लिटरेचर फेस्टिवल बताएगा ये जी, ये माहौल बनाएगा जी। ये बहुत महत्वपूर्ण बात लिटरेचर फेस्टिवल के बारे में कही। और किशोर राय जी, आप लिटरेचर फेस्टिवल अगले मतलब जनवरी में, अभी जनवरी जो है, हाँ 10 से हाँ, तो उस करने भी जा रहे हैं। तो अभी जो सूत्र दिया है भिवानी जी ने, हम लोग इसको उसमें आगे बढ़ाएंगे उस लिट फेस्ट में जो हम बम्बई में करने जा रहे हैं। और आपको बहुत बहुत धन्यवाद केशव राय जी। बस अपनी बात से समापन कर रहा हूँ कि जब हम स्कूल में पढ़ते थे तो वाद विवाद प्रतियोगिता होती थी, तो उस समय हमको ये नहीं मालूम था हमारे दौर में कि यार ये वाद विवाद करने से आगे इसमें भी एक करियर बन सकता है, जीवन बन सकता है। आज स्पीकरों को 5-5, 7-7 लाख रुपए देकर बुलाया जाता है। तो आज की तारीख में वक्ता होना, स्पीकर होना बहुत ही महत्वपूर्ण है और बहुत ही सफल जीवन है। धन्यवाद, आप सभी का धन्यवाद। नमस्कार।